Hello students, this is Professor Kavita Brahmankar, CO Department, NIT Polytechnic Nagpur welcomes you to the online lecture series of subject Computer Networking and Data Communication. Today's topic is 5.9 File Transfer Protocol, that is FTP. Learning outcomes. After watching this video, you will be able to state the objectives of FTP, describe working of FTP and state the types of connections in FTP. Course outcome that is going to map by this unit is CO5, configure the network component and assign IP address. And program outcomes, those are going to satisfy by this video are PO1 basic and discipline specific knowledge, PO4 engineering tools, experimentation and testing, PO6 project management, PO7 lifelong learning. Prerequisite to this topic is you should know the basic knowledge of domain name system and IP, Internet Protocol version 4 and version 6. Now FTP. FTP stands for File Transfer Protocol. FTP is a standard Internet protocol provided by TCP/IP used for transferring the files from one host to another. So basically this FTP protocol is given by or provided by Transmission Control Protocol or Internet Protocol, that is IP, and it is used to transmit the files from one host to another host which are located remotely. Means एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पे, ज़्यादा डिस्टेंस पे अगर फाइल है रिमोट एरिया में फाइल से, उन फाइल के ट्रांसफर्स के लिए FTP प्रोटोकॉल यूज होता है. It is mainly used for transferring the web page files from their creator to the computer that acts as a server for other computers on the internet. इसका मतलब यूजर जो भी वेब पेजेस बनाता है, इंटरनेट के लिए जो भी वेब पेजेस बनाता है, वेब फाइल्स बनाता है, वो सर्वर पे अपलोड करने के लिए नॉर्मली FTP प्रोटोकॉल का यूज होता है. एंड वो सर्वर पे अपलोड होने के बाद कोई दूसरा अगर उसको बाय यूजिंग ब्राउजर उसको ब्राउज करता है या फिर सर्व करता है, में सेम फाइल को या किसी फाइल को डाउनलोड करता है, तो डाउनलोडिंग के टाइम पे भी हमको FTP प्रोटोकॉल का यूज होता है. तो सिंपली हम बोलेंगे कि वेब पेज फाइल्स को अपलोड करने के लिए और उन फाइल्स को डाउनलोड करने के लिए FTP प्रोटोकॉल का यूज होता है. It is also used for downloading the files to computer from other servers. Just I said for uploading and downloading FTP protocol is used. Now what are the objectives of FTP? It provides the sharing of files. It is used to encourage the use of remote computers. Means फाइल शेयर्स करने के लिए रिमोटली कहीं सर्वर पे फाइल लोकेटेड है और उस फाइल को हम यहाँ पे डाउनलोड कर रहे हैं, एक्सेस कर रहे हैं, that is sharing of files. Then it is used to encourage the use of remote computers. रिमोटली क्लाइंट लोकेटेड है, रिमोटली सर्वर लोकेटेड है और उससे हम फाइल का एक्सेस मांग रहे हैं, है ना, तो इसीलिए it encourages the use of remote computers. It transfers the data more reliably and efficiently. So as it is provided by Transmission Control Protocol, so it is very reliable and efficient. Why FTP? हम FTP क्यों यूज करते हैं? So although transferring of files from one system to another is simple and straightforward, but sometimes it can cause problems. फाइल को ट्रांसफर करना फ्रॉम वन नेटवर्क होस्ट टू अनदर नेटवर्क होस्ट, ये बहुत सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड टास्क है, लेकिन सम टाइम कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं. प्रॉब्लम कौन से टाइप के हो सकते हैं कि फॉर एग्जांपल टू सिस्टम्स में हैव डिफरेंट फाइल कन्वेंशंस, डिफरेंट फॉर्मेट्स में फाइल्स है जो कि एक दूसरे को रीडेबल नहीं है. ओके, एक दूसरे को वो फाइल्स अंडरस्टैंडेबल नहीं है, डिफरेंट फाइल कन्वेंशंस में अवेलेबल है. या फिर टू सिस्टम्स में हैव डिफरेंट वेज टू रिप्रेजेंट टेक्स्ट एंड डेटा. यहाँ पे क्लाइंट सिस्टम के उस फाइल की एनकोडिंग टेक्निक कुछ अलग है और सर्वर सिस्टम पे या डेस्टिनेशन सिस्टम पे उसकी रिप्रेजेंटेशन की टेक्निक कुछ अलग है. एट दैट टाइम हम प्रॉब्लम में आ सकते हैं. सो टू सिस्टम्स में हैव डिफरेंट डायरेक्टरी स्ट्रक्चर्स. ओके, दोनों सिस्टम का जो डायरेक्टरी स्ट्रक्चर है, सोर्स एंड डेस्टिनेशन, दोनों का डायरेक्टरी स्ट्रक्चर अलग हो सकता है. या फिर
FTP protocols overcome this problem by establishing two connection between hosts. So ये जो problems हमने देखे, different file conventions, different ways to represent data and different directory structure, तो ये problems overcome करने के लिए हम FTP protocol use करता है. और ये किस तरीके से problem overcome करता है? So ये सर्वर के साथ क्लाइंट जो है वो दो टाइप के कनेक्शंस इस्टेब्लिश करता है. ओके, सो कौन कौन से कनेक्शन है? वन कनेक्शन इज फॉर डेटा ट्रांसफर एंड अदर कनेक्शन इज फॉर कंट्रोल कनेक्शन. सो डेटा ट्रांसफर के लिए एक कनेक्शन होगा एंड कनेक्शन को कंट्रोल करने के लिए दूसरा यहाँ पे कनेक्शन होगा. तो इसीलिए हम FTP यूज करते हैं. नाउ दिस इज द डायग्राम फॉर बेसिक मॉडल ऑफ FTP. जैसे कि हमने बोला था, क्लाइंट मशीन होती है और सर्वर मशीन होती है. ये एक दूसरे को डेटा सेंड करते हैं. सो कोई क्लाइंट डेटा सेंड करेगा, कोई दूसरा सर्वर को, और दूसरा क्लाइंट कोई उसी फाइल को डाउनलोड करेगा. ओके, सो सपोज दिस इज द होस्ट सिस्टम, सोर्स साइड की सिस्टम और क्लाइंट सिस्टम, एंड दिस इज द सर्वर साइड की सिस्टम और क्लाइंट सिस्टम. ओके, सो हियर यूजर इंटरफेस. तो क्लाइंट सर्वर के साथ कम्युनिकेट करने वाला है, तो किसी ना किसी एप्लीकेशन के थ्रू वो उसके साथ कम्युनिकेट करेगा, GUI के साथ कम्युनिकेट करेगा, उसको ही बोलेंगे हम यूजर इंटरफेस. सो यूजर इंटरफेस के थ्रू क्लाइंट सर्वर से कम्युनिकेट कर सकता है. सो यूजर इंटरफेस, देन फ्रॉम क्लाइंट टू सर्वर देयर आर टू कनेक्शंस. पहला कनेक्शन इज कंट्रोल कनेक्शन एंड दूसरा कनेक्शन इज डेटा कनेक्शन. सो देयर इज कंट्रोल प्रोसेस एंड डेटा ट्रांसफर प्रोसेस. तो यहाँ की कंट्रोल प्रोसेस और यहाँ की कंट्रोल प्रोसेस, ये कंट्रोल कनेक्शंस के थ्रू कम्युनिकेट करेंगे. यहाँ के डेटा ट्रांसफर प्रोसेस फ्रॉम क्लाइंट साइड एंड डेटा ट्रांसफर प्रोसेस फ्रॉम सर्वर साइड, बोथ these two will communicate by this data connection. So though FTP is provided by TCP/IP, so just like TCP/IP is a connection oriented protocol, connection establish करता है from source to destination, सेम उसी तरीके से हमारा FTP प्रोटोकॉल बाय यूजिंग TCP/IP यहाँ पे सर्वर और क्लाइंट के बीच में कनेक्शन इस्टेब्लिश करेगा. सो डेटा ट्रांसफर इस कनेक्शन के थ्रू होगा एंड कंट्रोल कनेक्शन मीन्स इफ देर आर प्रॉब्लम्स at the server side or client side for any file system or any other directory structures, so these problems may be overcome by these control connections. Okay, so this is the basic model of FTP. Then working of FTP. The FTP client has three components. कौन से? User interface, control process and data transfer process. And this server has two components, control process and data transfer process. The server has two components, server control process and server data transfer process. So in this way, now connections in FTP. So we have seen that there are two connections, control connection and data connection. So now we will see what happens to control connection. The control connection uses very simple rules for communication. Though through control connection we can transfer a line of command or line of response at a time. Okay, एक टाइम पे हम एक कमांड दे सकते हैं by using control connection. The control connection is made between the control processes. तो control connection कौन किसके किसके बीच में होगा? तो control connection दो control processes के बीच में होगा. एक कंट्रोल प्रोसेस फ्रॉम सर्वर साइड, दूसरी कंट्रोल प्रोसेस फ्रॉम क्लाइंट साइड. और ये जो कंट्रोल प्रोसेस है ये एट ए टाइम एक रिस्पॉन्स सेंड कर सकती है या फिर एट ए टाइम एक रिक्वेस्ट सेंड कर सकती है. द कंट्रोल कनेक्शन रिमेन्स कनेक्टेड ड्यूरिंग द एंटायर इंटरएक्टिव FTP सेशन. तो जब तक हमारा सेशन लाइव है, जब तक हमारा सेशन ओपन है, तब तक थ्रू दिस इंटरएक्टिव कनेक्शन ये कंट्रोल कनेक्शन हमेशा कनेक्टेड रहेगा. तो पूरे सेशन के लिए कंट्रोल कनेक्शन एक्टिव रहेगा. देन डेटा कनेक्शन. द डेटा कनेक्शन यूजेस वेरी कॉम्प्लेक्स रूल्स एज डेटा टाइप्स में वैरी. तो डेटा कनेक्शन किस लिए यूज होता है? डेटा कनेक्शन इज मेनली यूज फॉर अगेन डेटा ट्रांसफरिंग एंड इफ देर इज मिसमैच बिटवीन फाइल सिस्टम, सो फॉर दैट डेटा कनेक्शन इज यूज. सो इट इज वेरी कॉम्प्लेक्स बिकॉज डेटा टाइप्स में वैरी मीन्स अलग अलग टाइप का डेटा जो है दोनों साइड पे हो सकता है.
सो डेटा का टाइप जो है वैरी हो सकता है, इसीलिए डेटा कनेक्शन के रूल्स थोड़े कॉम्प्लेक्स हैं। द डेटा कनेक्शन इज मेड बिटवीन डेटा ट्रांसफर प्रोसेस। तो दोनों साइड की, क्लाइंट साइड की और सर्वर साइड की जो डेटा कनेक्शन प्रोसेस है उनके बीच में डेटा कनेक्शन इस्टेब्लिश होगा। The data connection opens when a command comes for transferring the files. Data connection open कब होगा? जब क्लाइंट से रिक्वेस्ट आएगी कि फाइल सेंड करो या फिर फाइल ट्रांसफर करो या फिर फाइल क्लोज करो। ओके, सो इस टाइप की अगर कमांड आती है फ्रॉम क्लाइंट साइड, एट दैट टाइम डेटा कनेक्शन विल गेट ओपन। तो इस तरह से कंट्रोल कनेक्शन और डेटा कनेक्शन वर्क करते हैं। देन FTP क्लाइंट्स। व्हाट इज FTP क्लाइंट? जो भी हमने बेसिक मॉडल में देखा, FTP क्लाइंट एंड FTP सर्वर। तो बेसिकली FTP क्लाइंट क्या होता है? सो FTP क्लाइंट इज अ प्रोग्राम दैट इम्प्लीमेंट्स अ फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल which allows you to transfer files between two hosts on the internet. So FTP प्रोटोकॉल को इम्प्लीमेंट कौन करता है? बेसिकली FTP क्लाइंट सबसे पहले उसको इम्प्लीमेंट करता है। किसके लिए? कि डेटा फाइल्स या डेटा ट्रांसफर रिमोटली ट्रांसफर करने के लिए। इट अलाउज यूजर टू कनेक्ट टू अ रिमोट होस्ट एंड अपलोड और डाउनलोड द फाइल्स। ओके, सो ये यूजर को अलाउ करता है कि तुम कनेक्ट हो जाओ रिमोट सिस्टम के साथ, एक तो फाइल्स को अपलोड करो, वेब फाइल्स को अपलोड करो या फिर वेब फाइल्स को डाउनलोड करो। इट हैज अ सेट ऑफ कमांड्स दैट वी कैन यूज टू कनेक्ट टू अ होस्ट, ट्रांसफर द फाइल्स बिटवीन यू एंड योर होस्ट एंड क्लोज द कनेक्शन। तो स्पेसिफिक कमांड्स यूज होते हैं जब भी हमको होस्ट के साथ, सर्वर के साथ कनेक्ट होना है तो उसके लिए एक स्पेसिफिक कमांड होगी। जब हमको फाइल्स ट्रांसफर करने हैं देन हमको जो हमारा जो सेशन है वो क्लोज करना है, सो कनेक्शन क्लोज करना है, कनेक्शन ओपन करना है, इन सब के लिए स्पेसिफिक FTP के कमांड्स होते हैं। The FTP program is also available as a built-in component in web browser. तो नॉर्मली हमारे वेब ब्राउजर्स में FTP प्रोग्राम जो है रेडीमेड अवेलेबल होता है, बिल्ट इन कंपोनेंट होता है हमारे वेब ब्राउजर में। दिस GUI बेस्ड FTP क्लाइंट मेक्स द फाइल ट्रांसफर वेरी इजी। ओके, सो क्लाइंट साइड पे हम GUI यूज करेंगे, जो हमारे वेब ब्राउजर के थ्रू हम GUI यूज करते हैं वही GUI यूज करेंगे। ओके, और FTP क्लाइंट उसका यूज करेगा उस GUI का, एंड इट इज वेरी इजी टू देन ट्रांसफर द फाइल्स and also does not require to remember the FTP command. और हमें FTP commands जो है वो रिमेम्बर करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि पूरे FTP कमांड के लिए जो प्रोग्राम है वो हमारे वेब ब्राउजर में ही इनबिल्ट है। फॉर एग्जाम्पल हम www.google.com जो है वो टाइप करते हैं हमारे URL में। सो एट दैट टाइम क्या होता है कि हम गूगल का जो भी GUI है वो GUI यूज करके हम गूगल के सर्वर को कमांड दे रहे हैं, हम गूगल के सर्वर को FTP की कोई कमांड दे रहे हैं, लेकिन हमको FTP दिखाई दे रहा है कि नहीं? हमारा FTP कहाँ पे है? जो भी वेब ब्राउजर हम यूज कर रहे हैं उस वेब ब्राउजर में ऑलरेडी वो इनबिल्ट है। ओके, सो जब हम सर्च कर रहे हैं और सर्च करने के बाद अगर उसको डाउनलोड कर रहे हैं तो अपलोड करते टाइम भी हम क्या करेंगे? FTP का यूज करेंगे, और कोई फाइल डाउनलोड कर रहे हैं हम गूगल के सर्वर पे तो भी हम FTP का यूज करेंगे। सो दिस इज द बेस्ट एग्जांपल फॉर FTP कमांड्स। So let us summarize today's lecture. Today we have studied what are the objectives of FTP, how is the working of FTP, and what are the types of connections available in FTP. So dear students, I hope you might have understood today's video. Thanks for watching the video. Keep learning and enjoy learning. Thank you so much.